Welcome to our YouTube channel, Target Nursing. So friends, this is my first ever video on YouTube. Here we are going to provide you the lectures on midwifery and obstetrical nursing. And here in this channel, we will going to provide you the series of lectures based upon syllabus of midwifery and obstetrical nursing. We are going to complete the syllabus of OBG in these videos. And this video is for all those students who are preparing for nursing competitions exam and for all those students who are in their college and doing the course of nursing. And just for your information, the lecture will be bilingual, means we will teach you in both languages, in Hindi and in English also. And I hope you are going to like the video. So before starting the lecture, just like, subscribe and share the video and hit the bell icon so that you can get the notifications of all my new videos. So today we will study about the female reproductive system. So I have taken this topic from BSc Nursing fourth year syllabus, and I think it's of second unit. So before starting the female reproductive system, we have some uh, key points in OBG. So here we can see it, like we will start from the key points. So first is obstetrics. Okay, so I think we all heard the word obstetrics, and we are studying also the OBG, that means obstetrics and gynecology. So what does it mean? It means the pregnancy and pregnancy related disorders. Means it is a medical specialty in which we can, it covers the pregnancy, childbirth and postpartum period. जो obstetrics होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितने भी होंगे वो सब हमारे obstetrics के अंदर हम स्टडी करेंगे. ठीक है, वो हमारा obstetrics होता है. एंड द सेकेंड वन इज गायनेकोलॉजी. You have heard about the gynecologist, जहाँ फीमेल्स जो होती हैं वो मतलब वो जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं जिन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो फीमेल स्पेशलिस्ट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको जो ट्रीट करते हैं वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं. तो गायनेकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, अबाउट नॉन प्रेग्नेंट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स. जितने भी हमारे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो हम गायनेकोलॉजी में स्टडी करते हैं. एंड द थर्ड वन इज midwifery nursing. Okay, so the midwifery nursing, as we all know, there are two courses of GNM and ANM. So the first one is GNM. GNM is known as General Nursing Midwifery, and ANM is Auxiliary Nursing Midwifery. So देयर मतलब कि इनका काम क्या होता है, जो GNMs एंड ANMs मिडवाइफरीज जो होती है हमारी, उनका काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द प्रेग्नेंट लेडी. वो क्या करते हैं, हमारे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं प्रेग्नेंट लेडी को. ओके, एंड कब प्रोवाइड करते हैं, ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी वो उन्हें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी, ड्यूरिंग लेबर भी वो उन्हें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी. तो वो जो होता है वो हमारा मिडवाइफरी नर्सिंग होता है. तो जो ये तीन हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हमारे की पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. So next we will go for the male reproductive system and female reproductive system. So अब आप बोलोगे कि हम तो female reproductive system पढ़ रहे हैं, तो male reproductive system का इसमें क्या काम है. So we have to clear our concept. ठीक है, before we will study about the female reproductive system, we have to clear our concept that what is the main difference between the male reproductive system and female reproductive system. At इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो हमारे वाइवाज में भी हमसे पूछे जाते हैं या फिर जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें भी आता है. तो ये जो चीज़ है ये बहुत मेन है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. तो हमें इसमें डिफरेंस पढ़ना है अभी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. उसके बाद हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे. अभी सिर्फ हम यहाँ आपको डिफरेंस के लिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी लिया है. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टडी होती है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज एंड्रोलॉजी, एंड द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज गायनेकोलॉजी, एज वी हैव सीन इट अर्लियर. दैट व्हाट इज गायनेकोलॉजी. Gynecology is a study in which we study about non-pregnant and female reproductive system related disorders. ठीक है, जितने भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं वो सब हम गायनेकोलॉजी के अंदर करते हैं.
ठीक है। देन आता है हमारा मेल पेल्विस। जो मेल पेल्विस होता है हमारा वो एंड्रॉइड होता है, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस लाइक एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिप्लॉइड, एंथ्रोपॉइड, ठीक है। जो मेल पेल्विस होता है हमारा एंड्रॉइड होता है और ये हमारा इसका जो शेप होता है वो हार्ट शेप होता है, ठीक है, हार्ट शेप का होता है। एंड जो फीमेल पेल्विस होता है हमारा वो गायनेकॉइड होता है, एज द गायनी इज रिलेटेड टू study of female reproductive system and andro is related to the study of एंड्रोलॉजी। हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को। तो जो मेल का पेल्विस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रॉइड कहते हैं, ठीक है। दे बोथ आर रिलेटेड एंड द गायनी एंड गायनोकॉइड इज ऑल्सो रिलेटेड। जो गायनोकॉइड होता है हमारा वो राउंड शेप का होता है और जो हमारा मेल पेल्विस होता है वो हार्ट शेप का होता है, ठीक है। देन आता है हमारा मेल हार्मोन। जो हमारा मेल हार्मोन होता है वो मेनली क्या होता है, एंड्रोजन होता है, ठीक है। सो एंड्रोजन भी रिलेटेड है। अगर आपको पता चल गया एक बार कि जो स्टडी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसे हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, तो यू विल गेट टू नो दैट द मेल hormone is androgen because the andrology, the male pelvis android and the male hormone androgen, they दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। और जो ये एंड्रोजन होता है हमारा वो टेस्टिस से सीक्रेट होता है। वैसे ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल हार्मोन जो होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो हमारा ओवेरी से सीक्रेट होता है, ठीक है। देन आता है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा होगा एमएसएन में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो टेस्टिस में होता है, ठीक है। एंड देन आता है हमारा ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन जो होता है उसे हम oogenesis कहते हैं और oogenesis के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी आगे की वीडियोस में, जिसमें हम फिटल डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे या फिर जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तो उस टाइम पे भी हमारा oogenesis आता है। और ये जो oogenesis की फॉर्म में जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या वो कहाँ होती है, हमारी ओवेरी में होती है, ठीक है। देन आता है हमारा स्पर्म साइज, ठीक है। जो स्पर्म साइज होता है वो हमारा 50 माइक्रोमीटर का होता है एंड 0.05 इन मिलीमीटर और रफली 0.002 इंचेस का इसका स्पर्म का साइज होता है। देन आता है हमारा ओवम साइज। ओवम साइज होता है 130 माइक्रोमीटर होता है, मतलब कि वो स्पर्म से काफी बड़ा होता है, ठीक है। देन आता है हमारा स्मॉलेस्ट सेल इन मेल बॉडी। मेल बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल जो होती है हमारे मेल बॉडी में वो होती है स्पर्म। और ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि मेल बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है तो वो क्या होगा, हमारा स्पर्म होगा, ठीक है। एज वी हैव सीन अर्लियर दैट कि उसका साइज ही कितना स्मॉल है, 0.02 इंच का है वो, तो वो स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, मेल बॉडी में। अब आता है स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल हमारा प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पर्म तो प्रेजेंट नहीं होता है और जो ओवम ओवम होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, तो स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी वो हमारे प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्गेस्ट सेल इन मेल बॉडी, सॉरी यहाँ पे फीमेल नहीं, यहाँ पे मेल होगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल इन मेल बॉडी इज नर्व सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल जो होगी मेल बॉडी में वो हमारी नर्व सेल होगी। अभी यहाँ पर कोई लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी वो क्या है, हमारी ओवम है। एज यू हैव सीन अर्लियर कि जो ओवम का साइज है वो 130 माइक्रोमीटर है, तो वो काफी बड़ा है, तो वो हमारी लार्जेस्ट सेल है फीमेल बॉडी की, ठीक है, फीमेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद आता है हमारा स्पर्म। स्पर्म में क्या होता है, हमारे जो हमारे ये होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो हमारा एक्स एंड वाई होता है, ठीक है, मेल में। और फीमेल में सेम वही है कि ऑटोसोम्स होंगे और वन जो होगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उसमें एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है, एक्स एंड एक्स होते हैं, इसमें एक्स एंड वाई होता है और इसमें एक्स एंड एक्स होते हैं, ठीक है। देन हमारा जो आता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 61 डेज लगते हैं और ओवम फॉर्मेशन जो होता है हमारा 10 to 14 डेज में हो जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म। जो लाइफ स्पैन होती है हमारे स्पर्म की वो 48 से 72 आवर्स तक की होती है और जो लाइफ स्पैन होती है हमारी ओवम की वो
12 to 24 आवर्स होती है, ठीक है। देन आता है हमारा पीएच ऑफ स्पर्म। पीएच जो होता है हमारा स्पर्म का वो 7.4 टू 7.8 होता है, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी और वाइवा के लिए भी, सो उन्हें देख लेते हैं पहले। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन सुना होता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन पूछता है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज स्किन, ठीक है। एंड द सेकंड इज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी। so there is a difference है लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। सो इंटरनल ऑर्गन क्या है हमारा, लीवर है सबसे बड़ा, और जो हमारा अगर हमें ऐसे पूछेंगे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो वो स्किन है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड भी हमारी लीवर होती है, और स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो होता है हमारी बॉडी में वो होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं आपको इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो आप इसे अच्छे से देखना और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसमें आता है हमारा इंटरनल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इंटरनल जेनाइटेलिया में हमारे जो ऑर्गन्स आते हैं वो होते हैं हमारे विजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरीज एंड सर्विक्स। ये जो हमारे 5 ऑर्गन है ये किस में आएंगे, हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल में आता है, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जो होता है इसको हम वल्वा भी कहते हैं और पुडेंडम भी कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ये याद रखना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक्सटर्नल, कभी जो होता है वो सेकंड नेम से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका अदर नेम्स क्या है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को हम वल्वा और पुडेंडम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आता है हमारे जो पार्ट है वह है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स एंड पेरिनियम, ठीक है। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना है और आई होप आप क्लियर भी हो इनके बारे में, अगर नहीं भी है तो वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंड देन आता है हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसमें हमारा ब्रेस्ट आता है, ठीक है। इसमें खाली वन ऑर्गन। So thank you friends. This is all for today. The part 2 of this lecture will be in the next video. And friends, let me tell you that we are going to provide you the PDF of these notes at the end of this series. So if you want to download the PDF, the link will be in the description box. And I love to hear the feedback of this video from you in the comment box also. And yes, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you so much.